Today we are doing society 2016. Four questions are over here. Take a screenshot, try to formulate the basic demand that you understand. And we have four aims: understand the demand, addressing all the part, writing in a introduction, and maintaining overall framework of this question. So without a delay, let's begin. 2016. First question is, what is the basis of regionalism? Like, it's a repetition. Regionalism has been asked, so you should know the definition of this thing, standard definition, not just make safety definition. Okay, so what is the basis of regionalism? It's a very beautiful question. It is that unequal distribution of benefit of development on regional basis. Eventually promote regionalism. Substantiate your answer. So first it is asking how regionalism develop, or what is the basis, किस basis पे regionalism, जो regionalism is like, you would know the feeling, it is both like love for one's region, and ये किस basis पे बनता है. तो there are various things, or not things, a dimension aspect which are founding stone. For example, if you take Maratha Manus or Maratha regionalism, so their language, culture. Similarly, if you see north south divide, so Hindi is the basis. So that's there. Then there are regionalism on basis of caste, or like Naga ethnicity. So different bases are there. And this question is first asking you what are the bases. So you have to enumerate them. Then there is this unequal distribution or relative deprivation. So can that be a part of or basis of regionalism? Okay, so yeah, it can be, because it is unequal distribution of benefit of development. So in what sense? Like, if there is a state, and you'll find that this happened like in Jharkhand and Telangana. So this was the reason in that case. So you just have to substantiate, and Jharkhand and Telangana would be used as an example over here. तो रीजनलिज्म की उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया भाई? इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू इंक्रीज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पावर एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ वन और मोर सब्सटेंशियल रीजंस. अब देखो, ये पॉलिटिकल भी है, बिल्कुल सही है, बट ये हम क्वेश्चन कहाँ पे आंसर कर रहे हैं ना? तो ये हमारा आंसर हो रहा है जीएस पेपर 1 में. तो यहाँ पे आप सोशियो पॉलिटिकल अगर आप रीजन दोगे ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. सिर्फ पॉलिटिकल कर दोगे तो पेपर 2 में, अगर आप जीएस पेपर 2 में आंसर लिखो तो बेहतर है. क्योंकि अगेन, ऊपर जैसे मैंने बताया कि एथनिसिटी इज नॉट लाइक मेनली पॉलिटिकल थिंग, इट्स मोर अबाउट सोसाइटी, सोशल आइडेंटिटी, लर्न, sorry, language is also that falling on that aspect. So you use this kind of definition which is aptly suited to the paper you are writing. So basis of regionalism: religion. Okay, good. Separatist, this is not any like term, separatist. What is the basis of this separatist tendency? You have to talk about that. Development, okay. Ethnicity, good. Political, Assam too. Like, there was this Assam student movement, no? So that was basically because outside people, immigrants came here and took local job and all that. So there was a sense of relative deprivation or denial of their local resources. Language, yes. So it's a very like extremely good, not just good. It's a very good approach that you have taken over here. Few lacunas are there, you can correct them, but it's a very good approach. Like, using map to show the basis, it's like like more than a standard approach. So it's somewhat par excellent practically. So very good. But this definition has to be corrected. Unequal distribution of development benefit promotes, yes. Example. Okay, no. How, like, influence of, no, this is not the intent of the question. Yes, no, like, there are definitely factors, but the question is not asking ki, is it the only basis. The question is ki, read here, is it unequal distribution of benefit development on the regional development on regional basis eventually promote regionalism? So yes, it does. Okay, however, there are other factors. That should be your answer. Okay, so yes, it does. Basically, how it does, you have to substantiate your answer. So yes, it does. And then however, or
what you are saying directly, no, so use that. However, there are other factors, and then you substantiate your answer, and that's it. So this format, like you are taking, make like correct it. Like first you cite this heading, unequal distribution promotes regionalism, so you can cite few examples over there. Then however you can put this thing, and then talk about few other examples. Regionalism on the basis of development is positive in nature, so government steps to meet developmental aspiration. ठीक है, like what you are trying to see, but regional on the basis of development is positive in nature, so government steps to meet developmental aspiration strengthen the national integrity. Now you are trying to connect so many points, and that's why like a coherent meaning is lost. So you should avoid doing this, and rather like simple and coherent conclusion is very important. So please do provide that. Let's see the second answer. Regionalism refers to expression of a strong regional identity by the people and is of a geographical region. Yes, this is a somewhat good and apt definition that you can provide over here. United by unique culture, language, etc. Geographical basis, cultural, political, historical, economic. Now you can learn from the other copy. Like that is somewhat like it's not wrong, but it's good. But that's better. Okay, it's good, but that's better. So you can definitely, our whole mantra is improvement. So it is good, but if there is a better option or alternative, we have to adopt that. Relation between unequal development and regionalism, very good. Like this is what you had to put over here. Like you have given this representative, like this heading is not that representative as this one. So yeah, this is a better heading. It is a representative of the demand of the question. Okay, demand of Telangana as a separate state, as a region, is less developed than the other part of Andhra Pradesh. Very good. Demand for separate Vidarbha, Jharkhand. Very good. Other responsible factor. Very good. Like you have aptly met the demand of the question. Factors like social politics. Very good. This is what you need to see. Like this conclusion is actually meeting the demand of the question. Regionalism is fueled by factors like social, historical, by the sense of relative deprivation compared to others. Very good observation. But one thing, like I said, you wrote those things in your factor responsible. Here it is. So it's better if you had approached this way, like here. You know? So this is a good example. Combined together, you both of you, like it's somewhat par excellent answer. Question number 2. To what extent globalization has influenced the core of the cultural diversity in India? Explain. So again, typical syllabus topic, globalization and its effect. On what? Its effect in terms of, not exactly effect, influence, what? Core of cultural diversity. So first you have to understand what do we mean by this term, cultural diversity, and what is the core of it and what is the surface of it. Okay. Then you can aptly write a good answer to this question. तो चलो देखते हैं भाई, ग्लोबलाइजेशन तो हर कोई लिख लेगा, है ना. उसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि हैज़ इन्फ्लुएंस टू व्हाट एक्सटेंट, कितने हद तक. लाइक हमारा लेट्स से ये कोर है, कोर वैल्यूज. कोर मतलब आपका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो कल्चर का, जैसे आप खुद का अपना जो एक होता है ना, हमारी संस्कृति है, तो उसमें आपकी कुछ चीज़ें अलाउ आप करते हो, उसको हम सरफेस बोलते हैं. जैसे कपड़े में कई लोग अलाउ कर देंगे कि या आपने मन की पसंद की, लाइक जीन्स इज ओके, but some people don't allow like going to pub dancing and drinking. So तब उनका ये core hurt होता है, like they are very very admitted. So it is somewhat making their core cultural identity. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा ये जो कोर है ये किस हद तक की है. तो लेट्स से हमारा समवॉट, मैं एग्जांपल सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा हूँ कि लेट्स से हमारा कोर था कि ये हमारी 10 चीज़ें, आवर कोर इज मेड ऑफ 10 सच बिलीव्स, एंड ग्लोबलाइजेशन की इफेक्ट की वजह से जैसे हमारे 3 जो बिलीव हैं बदल जाते हैं. तो आवर कोर इज इन्फ्लुएंस लाइक 3 एंड हियर 7.
मैं क्वांटिफाई इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, व्हाट एक्सटेंट से क्या मतलब है। तो हमारे 3 बिलीफ थोड़ा सा बदल गए। तो व्हाट हैपेंड इज कि आवर कोर इज somewhat somewhat like influenced by globalization, but majority is still intact। बट दूसरा केस लेते हैं, केस टू ये हुआ कि हमारा ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, हमने चीजें देखी समझी, लाइक मूवीज देखी, एंड 7 of those views are changed, only 3 are remaining। it would mean that globalization has drastically impacted our core of our cultural diversity और belief। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इट मींस, लाइक क्वेश्चन को आपने ये चीज दिखाना होगा, टू व्हाट एक्सटेंट। आई होप कि आप एक थोड़ा सा बेटर रेजोल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन के डिमांड को देख पाओ, मेरा एम ये था। अब यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी डेफिनेटली, बट लेट्स सी कि क्या इन्होंने इंट्रोडक्शन और अप्रोच क्या लिया है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज टू such an extent that even in one part of globe affect the people in other events in one part of, okay। So it is somewhat standard, but you can curtail it, cut short थोड़ा सा, और इतना ही इकोनॉमीज या सोसाइटीज तक ही रखो तो इतना बेहतर है। ठीक है, इफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ, हाँ देखो होता ये नहीं कि हमारे सिलेबस में दे रखा है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वी पुट दिस हियर इन्फ्लुएंस पूछा है, और उससे भी बेहतर है एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये है फैमिली, बट ऑल्सो लेड टू revival of these things। Globalization to certain extent promotes homogenization, which has endangered our cultural diversity। अब पहले तो आप वही मैंने बोला ना कि कल्चरल डाइवर्सिटी से क्या है, कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो हाँ आपका ये आया है, बट इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हुई हैं। इसके साथ साथ हमारा रिवाइवलिज्म हुआ है और हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तीन कुछ टर्म्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। तो आपने सेल्फ होमोजेनाइजेशन पे बात किया है। चलो इनका देखते हैं इन्होंने किस पे लिखा है। इनका है ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ, ओके ठीक है। एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, ये आपका अच्छा रिप्रेजेंटेटिव हेडिंग है, गुड, स्पेसिंग भी किया है, अच्छा है। लैंग्वेज, रीजन, structure of society, family, ethnicity, influence on these, cultural diversity, along with globalization, other factors of change like urbanization, modernization are also influencing the culture, which is coterminous with unity in diversity of India। ओके तो आपने जो एक कंक्लूजन दिया है, देखो आप क्या कह रहे हो इसमें, कह रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन तो कर रहा है बट और भी फैक्टर हैं जो इसको कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग द कल्चर विच इज को टर्मिनस विद। अब इससे आप क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ तक तो ठीक है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, यूनिटी इन इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ से आप थोड़ा सा डेविएट होना शुरू हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि मीनिंग क्लियर नहीं आ रही है। तो ओवरऑल आपका अप्रोच सही है, इसमें आपको मतलब जो वीक कीजिए तो ऐसे कल्चरल डाइवर्सिटी रिलेटेड से क्या मतलब है ना। अगर हम बोलें सिर्फ इसको हटा दें, चलो मैं दिखा रहा हूँ क्या गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है जो, अगर क्वेश्चन को ये कर दें कि टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज़ इन्फ्लुएंस द कोर ऑफ कल्चर इन इंडिया, तब क्या आपका आंसर यही नहीं रह जाएगा, तभी तो आप यही करोगे। तो इस शब्द का क्या मतलब हो जाएगा फिर, करके देख लो आप, जस्ट रिमूव दिस थिंग, you will still be writing this very same thing, okay। so this element को थोड़ा सा मिस कर दिया है आपने। सो रिविजिट आपका टॉपिक है, एक बार देखने की जरूरत है। डाइवर्सिटी से, कल्चरल डाइवर्सिटी से क्या मतलब है, एक पढ़ाने वाली बात हो जाएगी यहाँ पे, बट देयर आर, हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया इज, जो टर्म आता है ना कंपोजिट कल्चर, मल्टी कल्चरल, तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा आपको उन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा डायग्राम है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे, कि आपका कोर ऑफ कल्चर है देन, तो वो एक बार रिविजिट करिए। आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेक क्लास ओवर हियर, हाँ क्लास अगर होगा तो अभी जब डिकोडिंग सेशन में
will address these things. Next is, an essential condition to eradicate poverty is to liberate the poor from process of deprivation. ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया कि स्टेटमेंट दे दिया है कि एक एसेंशियल कंडीशन है, क्या कंडीशन है, टू इरेडिकेट पावर्टी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ, किस चीज़ का एक कंडीशन है, इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी का, क्या कि जो गरीब हैं, पुअर हैं, वो उनके पास स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन से, क्या मतलब उनके पास जो गरीबी थी, गरीबी को हटाना, बेसिकली पावर्टी इरेडिकेशन को का एक स्टेप है। मतलब सिंपल ट्रांसलेशन करूं और ज़्यादा रिफाइंड ट्रांसलेशन ये, तो गरीबी हटाने का मतलब है कि जो गरीब हैं उनके पास कुछ संसाधन आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा लाइक मैंने ट्विस्ट किया है क्योंकि यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन जो है उसका मतलब ये हो गया कि निर्धनता से मुक्त करना, और निर्धनता भी नहीं आएगा, इसका डेप्रिवेशन मतलब कमी जो है, संसाधनों की कमी से मुक्त करना। ठीक है, सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, हमें इसको साबित करना है, सब्सटेंशिएट करना है, मतलब एग्जाम्पल देनी है, डाटा देना है। ठीक है, तो किससे, एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने बोला। एग्जाम्पल में और भी चीज़ें, बेसिकली कुछ कोर सॉलिड कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल देने होंगे, हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू दिखाना होगा, हमें रियल ग्राउंड डाटा के थ्रू दिखाना है। जब भी ऐसा कुछ मिले तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से आपको सब्सटेंशिएट करना होता है, एक ही चीज़ पे नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट, ऐसी कुछ चीज़ें जो बात हो रही होती हैं, एंड देन आपके कुछ सिविल सोसाइटी या इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है वो बात कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू टेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एंड पर्सपेक्टिव्स। देखते हैं पावर्टी एज इकोनॉमिक्स। पावर्टी इज डिफाइंड एज दोज हु रिमेन एट द बॉटम ऑफ डिग्री ऑफ डिस्पर्सन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एसेट एंड कंजम्पशन। भैया इसका ना सिंपल उठा लो यार, ऐसी चीज़ें लिख के आओगे कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी लिखा है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सिंपल या तो अमर्त्य सेन वाली डेफिनेशन उठा लो, या सिंपल जो है डेफिनेशन जो इसकी स्टैंडर्ड है, रेफर्स टू स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन, या वर्ल्ड बैंक की उठा लो कि व्हेन यू डोंट हैव नेसेसरी रिसोर्सेज, तो वो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन। अभी यहाँ पे ये इतना टिपिकल इकोनॉमिक टर्म अगर आप उठा लोगे ना, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। एंड प्लीज डू आस्क, आपसे मैं खुद भी पूछूंगा ना कि आपने लिखा क्या है, इसका मतलब बताओ, तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। सो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, अमर्त्य सेन ने इसको इंटाइटलमेंट के टर्म्स में बताया है। ठीक है, तो ये दो आप उठाओ तो बेहतर होगा, रादर देन ऐसे भारी भरकम शब्द जो दे आर डिवॉइड ऑफ मीनिंग एंड यू वुड रिक्वायर अ मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। सो नहीं, आप ऐसा मत करिए, हमें जीएस के लिए आंसर लिखना है। कई बार जो चीज़ है ना, लाइक मैंने बहुत पढ़ा लिखा है बट आई कैन नॉट मेक मीनिंग ऑफ दिस। लाइक डिग्री ऑफ डिस्पर्सन, किस चीज़ का डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब जहाँ से आप, आई कैन थिंक ऑफ लाइट का डिस्पर्सन होता है, आप किस बात पे कर रहे हो, विदाउट ग्राफ इट इज आई थिंक इनकम्प्लीट। डिस्पर्सन इन इनकम, एसेट इन कंजम्पशन, तो डिस्पर्सन इनके डिस्पर्सन के बॉटम पे रहते हैं। ठीक है, तो आप एक रेफरेंस देके बता रहे हैं, सिंपल स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इट वुड बी मोर अप्रिशिएटेड, और जब आपके पास है ही तो क्यों नहीं। ठीक है, रीजन बिहाइंड डेप्रिवेशन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से आप फिर भटक रहे हो। ये बोल रहा है क्या कि इरेडिकेशन जो हमारा कंडीशन है पावर्टी इरेडिकेशन का, क्या है, लिबरेट पुअर फ्रॉम प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन। तो आप रीजन ऑफ डेप्रिवेशन में चले गए हो, क्यों होता है। आप पावर्टी इरेडिकेशन देखो क्या कह रहा है कि पावर्टी इरेडिकेशन जो है ना, ये जो प्रोसेस है इसका मेजर करने का या एक एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो गरीब लोग हैं ना, पुअर फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे दे दिया है, प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन। इसका मतलब ये है कि लेट्स से एग्जांपल, मैं इससे ज़्यादा क्लियर आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने लेट्स से पावर्टी इरेडिकेशन का एक स्कीम चलाई, ठीक है, उसमें क्या हुआ मृणाल याद आ रहा है बट अगेन सूटकेस ले लो योजना है ना, तो उसमें आपने सबको पैसे बांट दिए। ठीक है, इनके पास संसाधन तो आ गए फॉर अ मंथ या फॉर अ ईयर लेट्स से, बट आफ्टर ईयर व्हाट विल हैपन, ये फिर से गरीब है, तो दे डिड कम आउट, जो हम पढ़ते हैं क्रॉनिक पॉवर्टी एंड ऑल दैट, फॉर अ टाइम पीरियड व्हाट यू डिड, इनको आपने संसाधन प्रोवाइड कर दिया, आपने इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, दे केम आउट ऑफ पॉवर्टी, नाउ दे आर अबव पॉवर्टी लाइन, बट व्हाट विल हैपन,
आफ्टर a year दे आर अगेन बैक टू बिलो पॉवर्टी या पॉवर्टी में फिर से आ गए। तो आपने उनको डेप्रिवेशन तो हटा दिया बट प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन से नहीं हटाया। मतलब यहाँ पे बात हो रही है पॉवर्टी साइकिल की, ठीक है। इसलिए मैंने अमर्त्य सेन की बात की। दूसरा अप्रोच ले लो कि तुमने इनको कोई रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया, बट इनको ऐसी स्किल दे दी जो हम बोलते हैं ना कि टीच अ पर्सन हाउ टू फिश रादर देन गिविंग अ फिश। एक इंसान को एक मछली दोगे तो उसका खा के एक दिन का पेट भर जाएगा, बट उसको मछली पकड़ना सिखा दोगे तो जिंदगी भर के लिए वो अपना मछली पकड़ के खा सकता है। सेम चीज हियर, वो है प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन। तो आपने उसको स्किल दे दी। स्किल से क्या होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, तो थ्रू आउट लाइफ वो इस प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये है मतलब इस क्वेश्चन का। अगर आपने इसको नहीं पकड़ा तो डेफिनेटली गड़बड़ करोगे। आपने क्या फिर लिखे हैं, रीजंस सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं। ये बहुत अच्छी बात है, चीज़ें आपने, ये अगर ऐसे आता है तो अप्रोच बहुत ही बढ़िया है आपका, ठीक है। बट अगेन इसीलिए मैं इस पूरे लाइक कितने दिनों से किस चीज़ पे काम करा रहा हूँ, डिमांड। अगर आप डिमांड ही नहीं दोगे ना तो आप देखो ना कितना अच्छा आप चीज़ें लिखे हो, यहाँ पे कितने अच्छे पॉइंट दिए हो, 1 2 3, लाइक दीज आर सो ब्यूटीफुली गिवन। ये हटा के आपने जैसे भी अब लिखा है, बट इतना अच्छा अच्छा इतना डाटा देने के बावजूद भी वॉट दे आर नॉट मीटिंग द डिमांड एंड यू वॉन्ट गेट मार्क्स। वाई? बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो मेक श्योर दैट यू गेट इट वेरी एक्यूरेटली। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लेना था, समझने की कोशिश करना था कि क्या क्या रहा है ये क्वेश्चन। विदाउट दैट समस्या हो जाती, ठीक है। तो आपने लिखा क्या, रीजन आपने दे दिया डेप्रिवेशन के लिए कि सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट, लिटरेसी, ये लूप होल्स लेजिस्लेशन। फिर आपने इनिशिएटिव टेकन टू मिटिगेट द प्रोसेस ऑफ डेप्रिवेशन, स्टैंड अप इंडिया, ये ठीक है। लैंड रिफॉर्म, पीएम कौशल विकास योजना, डीबीटी, फॉर्मलाइजेशन ऑफ, ये कुछ चीज़ें बिल्कुल देखो आपका आ रहा है। जैसे स्टैंड अप हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इनको स्किल दे रहे हैं, ठीक है। कौशल में भी आप क्या दे रहे हो, स्किल दे रहे हो, तो आप प्रोसेस को एड्रेस कर रहे हो। बट अगेन जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसको सब्सटेंशिएट करो, वो आपका भी नहीं हो पा रहा है। मनरेगा क्या आपको मछली पकड़ना सिखा रहा है, मछली दे रहा है? डू कमेंट। एंड इसीलिए मनरेगा की बुराई होती है, लाइक दिस इज अ कोर क्रिटिसिज्म ऑफ मनरेगा। Conclusion, there is a need to collaborate government with India to achieve SDGs and SDG 1 what poverty eradication, ठीक है। तो आप डिमांड नहीं मीट की हो क्वेश्चन की। चलो इनका देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड डेप्रिवेशन इन वेलबींग एंड कॉम्प्रोमाइज मेनी डायमेंशन, इट इंक्लूड लो इनकम। इसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक नेसेसिटीज के टर्म में आप बात कर सकते हो, ठीक है, कट शॉर्ट करके। ये उन्होंने एटलीस्ट आई थिंक जब आप पढ़ने जाओगे ना एक्चुअल डेफिनेशन, तो आधे पन्ने की डेफिनेशन है कि आप ये नहीं कर पा रहे हो, आप वो नहीं कर पा रहे हो, ये। तो वंस यू रीड द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो वो तो और बड़ा है। सो यू कैन कट इट शॉर्ट कि पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन वेयर वन कैन नॉट मीट वंस बेसिक नीड सच एज फूड, एनर्जी, सिक्योरिटी, हाउसिंग। तो ये चीज़ें आप लिख दोगे तो खुद ही जो है, हम इंडिया में क्या करते थे, रोटी कपड़ा मकान, यही तो चीज़ थी पहले। बट अभी क्या हो गया, और थोड़ा सा डायमेंशन ऐड हो गए, अब एजुकेशन भी आ जाता है, ठीक है। ये कर सकते हो, या यूएनडीपी वाला मल्टी डायमेंशनल भी अप्रोच उठा सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना, ठीक है, विच रेफर्स टू स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन अक्रॉस डायमेंशन। ये जो भी आपको याद हो डायमेंशन वो लिख सकते हो। तो सिंपल चीज़ें हैं, आप बस उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगी। पॉवर्टी, हंगर, लो इनकम, लेस प्रोडक्टिविटी, लेस इन इनकम, ठीक है। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉवर्टी creates deprivation and perpetuates poverty, ठीक है। पॉवर्टी वाला एस्पेक्ट ये आपका थोड़ा बहुत जो है डिमांड की क्लोज आ रहा है डेफिनेटली। गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड इकोनॉमिक, सोशल एंड रिसोर्स डेप्रिवेशन अमंग पुअर एंड टेकन स्टेप टू फॉलोइंग एंड दिस हेल्थ, न्यूट्रिशन। अब देखो इसका इंट्रोडक्शन एक तो ये हो गया। अगर आप सीधे कहें कि हिटिंग द बुल साइड, तो आप इसको अगर एडजस्ट कर लेते ना तो बेहतर होता।
कैसे आप कर सकते हो? लाइक आप एक तो पॉवर्टी डेफिनेशन कर रहे हो, वो भी ठीक है, उसको शॉर्ट में कि पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन, सिंपल वाला एक लाइन का जो, अगेन मैं एक और चीज़ बता दूंगा कि ऐसी चीज़ें हैं तो एक वन लाइनर डेफिनेशन भी तैयार रखा करो जैसे यहाँ पे, तब आप इस कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। इन वन ऑफ, जैसे ये है तो यहाँ पे बोलते हैं कि पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन इन वन ऑफ एसेंशियल कंडीशन फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज नॉट to just provide resources to poor but to get them out of process of deprivation। process में आप लिख देते vicious cycle, ठीक है। तो आप दिखा देते एग्जामिनर को, एग्जाम लाइक आई टेल यू नो, इंट्रोडक्शन इज टेलिंग, इतना पढ़ते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि यस यू हैव अंडरस्टूड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कि हम इस प्रोसेस पे जो पूरा कोर ऑफ द क्वेश्चन इज गेटिंग पीपल आउट ऑफ दिस प्रोसेस और विशियस साइकिल ऑफ डेप्रिवेशन, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो कि आपने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, दीज आर द स्टेप। अब आप ये बोल रहे हो कि सब्सटेंशिएट हम कर रहे हैं, तो टू एन एक्सटेंट आप चीज़ें एड्रेस कर रहे हो, बट अगेन इट कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड, ठीक है। कैसे कि आप इस चीज़ को सब्सटेंशिएट क्या बोला, कॉन्सेप्चुअली बोला था ना, जब स्टार्टिंग हुई थी तब बोला था कि आपको फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि इसका मतलब क्या है। वंस यू डू दैट देन आप इस पे आ जाओगे कि हाँ इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिए हैं जो कि इस तरीके से लोगों को बाहर कर रहा है, देन यू कैन सब्सटेंशिएट दिस विद डाटा कि पीपल जो है अब डाटा कैसे यहाँ पे, अब आपको ऐसे डाटा चाहिए होगा कि मनरेगा में जो रहते हैं ना, तो वंस मनरेगा इज क्लोज दे आर स्टिल पुअर, बट पीपल हु आर लाइक taken out of poverty through employment generation schemes or skill development, so once they go out they remain unpoor, yeah, they remain somewhat above the poverty line and many turn out to be affluent, so this is what is showing or meeting the demand of the question, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आपने कंक्लूजन क्या लिखा है। इन दिस steps are implemented effectively then the poor will be liberated from the deprivation and can contribute to growth and development of, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते थे, इंक्लूसिव ग्रोथ के टर्म्स में लिख सकते थे, बट ओवरऑल आप इट इज समवॉट बेटर आंसर इन मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन देन दिस वन, ठीक है। आपने भी चीज़ें बहुत लिखी हैं, डाटा दी हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली मीटिंग द डिमांड। तो यही डिफरेंस हो जाता है कि कई लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के आते हैं एंड देन दे गेट लाइक लेस मार्क एंड फिर समझ में नहीं आता कि क्या है, और यही वो लोग हैं जो 4 बार और 5 बार मेंस लिख रहे होते हैं, फिर उनको लगता है कि यार मुझे आता तो सब है, देख लो कितना बढ़िया डाटा सब कुछ है और सब कुछ आते हुए भी फिर यही हाल होता है। सो डोंट फॉल विक्टिम टू दिस थिंग। और अपने आसपास कोई चाचा हो जो लिखे हो तो उनको भी भाई बताना और पूछ के देखना, आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज टू यू पीपल। आपके आसपास अगर कोई मेंस रिटन कैंडिडेट है तो आस्क दिस क्वेश्चन एंड सी इफ दे हैव दिस क्लैरिटी on this question. Very often they don't, and that's why they are stuck there. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई ट्राइबल रेफर टू शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, सीधे सीधे पूछ लिया शेड्यूल्ड ट्राइब से क्या मतलब है तुम्हारा। इंडिकेट मेजर प्रोविजन इंसाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। वैसे तो तुम्हारा पेपर 2 का क्वेश्चन होना चाहिए, वहाँ पे है तो सोशल जस्टिस लाइक उसमें है वीक एंड वल्नरेबल सेक्शन के लिए, वहाँ पे आपका एप्ट होता, बट पूछ दिया तो पूछ दिया भाई। तो क्या बताओगे, सिंपल सिंपल कौन सा शेड्यूल है भाई जो बात करता है, यहाँ पे आर्टिकल देना पड़ेगा, हाँ, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ ट्राइबल प्रोवाइड, ये नहीं देना है भाई, आप क्यों कर रहे हो, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट प्रोवाइड दिस की प्रोवाइड पावर टू प्रेसिडेंट, ये भी जरूरत नहीं है, ठीक है। टू स्पेसिफाई ट्राइब्स और पार्ट, ये आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट नहीं है, आप देखो ना क्या करते हो, इंट्रोडक्शन शुड बी गिविंग अ ब्रॉडर पिक्चर और द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप कर क्या रहे हो, देखो इसमें बिकॉज ये है इसलिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है, आप इसी में चीज़ें कई चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप हिस्ट्री वाली चीज़ होती तब भी आप लिख देते इस तरह से व्हाट वाई वेयर, तो समझ में आता है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे पूछा है शेड्यूल ट्राइब, सिंपल दो, देन आप उसमें रीजन दे दोगे कि क्यों, अगेन तब आपका यहाँ पे आएगा ना अच्छा सा, फिर प्रोसेस क्या है तब आप ये बता सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन ये होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब रेफर्स टू द ट्राइब विच आर इनकॉर्पोरेटेड एज पर आर्टिकल, या सीधे यहाँ से भी शुरू कर रहे थे, प्रोवाइड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टेन ट्राइब्स। यहाँ पे सिंपल अगर यही भी अगर आपको ऐड करना है तो बाई प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, तो आपने आर्टिकल भी एड्रेस कर दिया कि कौन कर रहा है, वो भी कर दिया ये। उसके बाद रीजन आप बात कर देते क्यों भाई। ठीक है, मेजर प्रोविजन फॉर, उसके बाद इसने क्या किया है, इंडिकेट मेजर प्रोविजन इंश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। ठीक है, सो आर्टिकल से लाइक नहीं होगी चीज़ें, आपको बताना पड़ेगा थोड़े से प्रोविजंस, मतलब कि क्या क्या टर्म्स हैं। ठीक है, तो आप फंडामेंटल राइट में बात कर दोगे, डीपीएसपी आप क्या है, फंडामेंटल राइट में स्पेशल प्रोविजन है, डीपीएसपी में भी है। ठीक है, और क्या है, आपका स्केड्यूल है। ठीक है, देन रिजर्वेशन है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया। देन आपके कमीशंस हैं, SC ST कमीशन जो आपने यहाँ पे लिखा है 38 एंड 38A। ठीक है, ये आपने सीट वाला बात किया है। ठीक है, ओके। टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट मेनी लेजिस्लेशन लाइक SC ST PESA FRA इंट्रोड्यूस बट स्टिल कंसर्न्स रिमेन। ठीक है, आपने जस्टिस कर दिया, बट ये थोड़ा सा आपको टर्म बात करना पड़ेगा। कोई भी कर सेक्शन के लिए क्या है, स्पेशल राइट हैं, स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं, डेडिकेटेड शेड्यूल है फॉर ऑटोनोमस एंड गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस के लिए उनके है, देन रिप्रेजेंटेशन के लिए है, देन उनके वेलफेयर के लिए है। तो ये आप चीज़ें डालोगे, ये हेडिंग्स होंगी, देन ये दे विल बी सब्सटेंशिएटेड थ्रू दीज आर्टिकल्स एंड दिस इज ऑल्सो गुड। या आप ये चीज़ें बात कर दिए, एक यहाँ पे सिंपल देते कि इन परस्यूट ऑफ दिस प्रोविजन आर इंट्रोड्यूस। ठीक है, वे फॉरवर्ड कंसर्न की जगह पे आप सीधे यहाँ पे आप इतनी ज़्यादा नहीं लिख सकते ना चीज़ें, इतना अगर आप ये ऊपर वाला अगर कॉम्प्रोमाइज़ करो तभी लिख पाओगे, बट ये जो भी बताया ये लिखोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है और ना ही आपके पास स्कोप है, तो इसको स्किप करके सीधे वे फॉरवर्ड, है ना, आपका कंक्लूजन हो गया, वे फॉरवर्ड आ जाएगा। देयर इज अ नीड टू रीडिफाइन आवर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट फैसिलिटेट डिग्निफाइड मीन्स। हाँ तो ठीक है, आप ये लिख सकते हो वे फॉरवर्ड में, दिख रहा है ना, खुद ही वे फॉरवर्ड दिखा रहा है ये। चलो सेकंड आंसर देखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच प्रेसिडेंट नोटिफाइज एनी ऑफ इंडिया एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज एंड ट्राइब एज शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो आपने गड़बड़ कर दिया है ना, ऑफ इंडिया एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर एरिया एंड ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, कैसे गड़बड़ हो गई है आपसे, एंड द ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गड़बड़ लग रहा है ना सर। तो इसको देखिए, इसमें सिर्फ ये आप इसको डिफाइन करोगे। ठीक है, और ये अभी रेलेवेंट है क्योंकि हमारा फिर से मॉडिफिकेशन हुआ था, है ना। तो दिस क्वेश्चन कैन बी फर्दर आस्क्ड, और आपके GS पेपर 1 GS पेपर 2 लाइक आई टॉक्ड अबाउट दोनों के टर्म्स में रेलेवेंट है, क्योंकि अगेन स्टेट से पावर ले ली गई थी ना, तो इट्स स्टिल आपको वो अमेंडमेंट भी ध्यान में रखना है। फंडामेंटल राइट DPSP, खाली ये नहीं बताना, ये तो लाइक आप दिस इज देखो व्हाट आई से लाइक टेल यू ना, आप अपने लिए लिख रहे हो तब तो ठीक है, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है ना, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। नंबर मिलता है विजडम पे, अगर आपका आंसर विजडम दिखा रहा है, ठीक है, तो उस पर नंबर मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ माइंड, है ना, एक तो इट विल बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोविजन पूछ रहे हैं, तो आप स्पेशल प्रोविजन जो है फंडामेंटल राइट में एक्सेप्शंस दिए गए उनकी बात करोगे, DPSP में उनको कैसे स्टेट को डायरेक्टिव दिए, स्पेशल डायरेक्टिव, वो बात करोगे। ठीक है, देन रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम उनको स्पेशल प्रोविजन दे रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन में हम उनको कैसे दे रहे हैं, तो आप ये चीज़ें इस तरीके से लिखोगे तो ये प्रोटेक्शन के लिए आप कमीशन ही छोड़ दियो, बताओ, आर्टिकल बस लिख दिया है,
एसटी के लिए, तो ये कमीशन आप नहीं छोड़ सकते हो। और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक मुझे बताओ कि अभी रिसेंटली कौन सा एक, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं है तो जाने दो उस चीज़ को, बट ये चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते हो। अदर इनिशिएटिव्स, हाँ बिल्कुल, जो इन्होंने लिखा था वही कि कंक्लूजन में यही आपका आ जाएगा, एंड वे फॉरवर्ड आर नॉट ओनली स्पेक्टर ऑफ डेवलपमेंट बट आर एक्टिव अक्रॉस द participant of the countries are active actors and participant of नहीं in countries development। ठीक है, तो आप क्या एग्जैक्टली बात कर रहे हो? दिस इज नथिंग बट यू आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे बात कर रहे हो ना इंक्लूसिव ग्रोथ बेसिकली, तो वो यहाँ पे अभी रियलाइज नहीं हुआ, मतलब स्पीच के टर्म में अभी ये हम उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ये हमें चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आपका ये कंक्लूजन की जगह पे समथिंग वे फॉरवर्ड हो जाएगा कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के टर्म्स में एसटीज को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट करना है, उसमें ये जो प्रोविजन है वो हेल्पफुल होंगे। तो इस तरह से करके हम खत्म कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।